हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और साथ में कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट डू रियलिस्टिक्स मीन व्हेन दे से द इंटरनेशनल सिस्टम इज एनार्किकल? रियलिस्टिक्स को इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्किक से क्या मतलब समझते हैं? ऑप्शन नंबर वन, ऑल स्टेट्स आर ऑलवेज एट वॉर विथ ईच अदर। हर स्टेट्स जो है वो एक दूसरे के साथ वॉर में है। ऑप्शन नंबर बी, नॉन स्टेट एक्टर्स कंट्रोल ग्लोबल पॉलिटिक्स। नॉन स्टेट एक्टर्स ग्लोबल पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, देयर इज नो सेंट्रल वर्ल्ड गवर्नमेंट अबव स्टेट्स। वहां पे कोई भी इंटरनेशनल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, देयर आर नो रूल्स और नॉर्म्स इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई रूल्स एंड नॉर्म्स नहीं है। एनार्की का आपको मतलब बताना है। सो इसका राइट आंसर रहेगा anarchy means that there is no central government above the states that control, enforce and provide guarantee protection. Anarchy का मतलब ये है कि कोई भी central government international system में नहीं है. There are international laws, treaties and organizations, लेकिन इनकी same authority और enforcement नहीं होती है जैसे कि domestic government की होती है. So anarchy का मतलब हो गया कि कोई भी central government जो है above the states नहीं है. Question number 2. How do structural, that's the neo-realism different from classical realism? Realism की दो ब्रांचेस है, structural realism और फिर classical realism. आपको बताना है structural realism जो है वो कैसे डिफर कर लेता है from the classical realism. Structural realism believes international organization fully control the states. Structural realism के according international organization जो है वो states को control कर लेती है. Option number B, structural realism believes international anarchy not human nature for power politics. स्ट्रक्चरल रियलिज्म जो है वो रिस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल एनार्की को मानते हैं, न कि ह्यूमन नेचर को फॉर पावर पॉलिटिक्स. Option number C, structural realism argues that morality is the main driver of foreign policy. Structural realism के according morality जो है वो main driver है foreign policy का. या फिर option number D, structural realism says that domestic politics explains most international behavior. In realistic thought, what is the security dilemma? Option number one, when international law perfectly prevents security cooperation. Option number B, when small states always benefit from alliances with great powers. Option number C, when states focus only on economic security and ignore military power. Option number D, when efforts by one state to increase its security make others feel less secure. सो आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो रहेगा. सिक्योरिटी डिलेमा मींस जब एक स्टेट जो है वो अपना सिक्योरिटी जो है वो इंक्रीज कर लेती है और दूसरा स्टेट जो है वो उसको उससे थ्रेट हो जाता है. Security dilemma is a situation in international system where the actions taken by a state to increase its own security. एक स्टेट जो है वो अपनी खुद की सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए एक्शंस लेता है, अनइंटेंशनली ये दूसरी स्टेट्स को जो है वो एज अ थ्रेट उसको ले लेते हैं. एंड द टर्म वाज कॉइन्ड बाय जॉन एच हर्स एंड लेटर डेवलप्ड बाय रॉबर्ट जर्विस. Complex interdependence theory is primarily associated with option number 1, Robert Coheny and Joseph Nye. Option number B, Kenneth Waltz and Stephen Wald. Option number C, Alexander Wendt and Peter Kaczynski. Option number D, Hadley Bull. So इसका जो right answer रहेगा that is option number 1, Robert Coheny and Joseph Nye. इसको समझते हैं. Complex interdependence is a theory in international relations that argues states and societies are deeply interconnected through economic, political and social ties. Complex interdependence के according international system जो है वो deeply connected है और ये theory जो है develop कर दी थी रॉबर्ट कोहनी एंड जोसेफ नाई ने अपनी बुक पावर एंड इंटरडिपेंडेंस 1977 में. आपको प्रोपोनेंट्स के नाम भी याद रखने हैं, बुक का नाम भी याद रखना है. कोर फीचर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस. Number 1, multiple channel of interaction.
कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के अकॉर्डिंग मल्टीपल चैनल्स इंटरैक्शन के लिए होते इंटरनेशनल सिस्टम में। और दूसरा, नो हायरार्की ऑफ इश्यूज, वहां पे कोई हायरार्की नहीं होती है। डिक्लाइनिंग रोल ऑफ मिलिट्री फोर्स का कोई रोल जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, डिक्लाइनिंग रोल है। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और उनके स्कॉलर्स के नाम है। कोल्ड वार, ग्लोबल विलेज, सुपर पावर, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। ऑप्शंस है मार्शल मैक्लोहन, विलियम फॉक्स, बर्नार्ड बर्च, साइमन हंटिंगटन। सो सबसे पहले कोल्ड वार टर्म जो था इट वाज कॉइन्ड बाय बर्नार्ड बर्च। ग्लोबल विलेज जो है वो मार्शल मैकलन ने दी है। सुपर पावर जो है द टर्म वाज कॉइन्ड बाय विलियम फॉक्स एंड क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हंटिंगटन ने दे दिया है। Cold War was popularized by the Bernard Birch in 1947. Global Village was coined by the Marshall McLuhan, and Superpower was popularized by William Fox, and Clash of Civilization was proposed by Simon Huntington. Books and the thinkers. Politics among nations, theory of international politics after hegemony, tragedy of great power, politics. Kenneth Walters, Margintho, Robert Coheny, John Mayer Schumer. सबसे पहले ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स जॉन मेयर शुमर ने। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स केनेथ वॉल्टर्स की बुक है। पॉलिटिक्स एमंग नेशंस मार्गिन्थो की बुक है। एंड आफ्टर हेजेमनी जो है वो रॉबर्ट कहानी की बुक है। पॉलिटिक्स एमंग नेशंस मार्गिन्थो ने दे दिया। इट वाज पब्लिश्ड इन 1948। 1948 में पब्लिश हो गया एंड ये फाउंडेशनल टेक्स्ट है क्लासिकल रियलिज्म का। एंड मार्गिन्थो आर्ग्यूज दैट पॉलिटिक्स इज गवर्नड बाय ऑब्जेक्ट टू लॉज रूटेड इन ह्यूमन नेचर। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स केनेथ वॉल्टर्स ने लिखी है एंड इट इज द फाउंडेशनल वर्क ऑफ नियो रियलिज्म। एंड वॉल्टर्स आर्ग्यूज दैट द स्ट्रक्चर्स ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम डिटरमाइंस द स्टेट्स बिहेवियर। क्लासिकल रियलिज्म के अकॉर्डिंग ह्यूमन नेचर जो है वो डिटरमाइन कर लेता है इंटरनेशनल बिहेवियर, लेकिन न्यू रियलिज्म के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो डिटरमाइन कर लेता है स्टेट के बिहेवियर्स। आफ्टर हेजोमनी रॉबर्ट कोहेनी ने लिखी है एंड इट आर्ग्यूज दैट इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज पॉसिबल इवन विदाउट ए डोमिनेंट हेजोमॉन। ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स जॉन मेयरशमर ने लिखी है। द थ्योरी जो है ऑफेंसिव रियलिज्म जॉन मेयरशमर ने डेवलप कर दी है। एंड जॉन मेयरशमर आर्ग्यूज दैट ग्रेट पावर जो है कॉन्स्टेंटली सीक्स टू मैक्सिमाइज द पावर एंड अचीव द रीजनल हेजेमनी। ग्रेट पावर जो होते हैं वो हमेशा इसी में लगे रहते हैं कि वो अपने पावर को मैक्सिमाइज करे और रीजनल हेजेमनी जो है वो अचीव करे। What is the key focus of feminist theorists in international relations? Feminist theories का key focus क्या था international relations में? Option number 1, explaining only military conflict, सिर्फ military conflict को explain कर लेना। Option number B, replacing all traditional IR theories with new one, जो traditional IR theories है इनको replace कर लेना। Option number C, studying only women leaders in foreign policy, women leaders को study कर लेना। या फिर option number D, highlighting how gender shapes power and global politics। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हाउ जेंडर शेप्स पावर एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स। हाउ जेंडर शेप्स पावर एंड पॉलिटिक्स जो है ये सेंट्रल थीम है फेमिनिस्ट आईआर का। तो ये थे आज ही हमारे एमसीक्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। 10 मिनट्स में हमने बहुत एमसीक्यूज डिस्कस किए।